Good morning. Everybody all right? सब ठीक है? Thank you, Brother Abhishek, for singing such wonderful song. भाई अभिषेक इतने अच्छे गीत को गाने के लिए आपका शुक्रिया। We cannot imagine how close it is. और Jesus Christ who came to this earth और to सचमुच जो shine upon us. मसीह यीशु जो इस जगत में आए अपनी ज्योति को प्रकट करने के लिए, हम उसकी कल्पना, उसके मूल्य को हम कल्पना भी नहीं कर सकते। Because of his life, we are here. उसकी जिंदगी की वजह से हम यहाँ पर हैं। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Because of his life, we are here. उसके जीवन की वजह से हम यहाँ पर हैं। And also, thank you, Brother Abhishek, for introducing me with my name. Correct name. और भाई अभिषेक मेरे सही नाम का उच्चारण करते हुए मुझे यहाँ पर स्वागत करने के लिए आपका धन्यवाद। I'm something confused because some different people give me different name. मैं बहुत ही भ्रमित हो जाता हूँ कई बार, क्योंकि अलग अलग लोग मुझे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। Such as Refool, Reblue, and Reblue. Anyway, I give thanks to my God for such beautiful name, Reborn. तो पर भी मैं जो सुंदर नाम परमेश्वर ने मुझे पॉल रिबॉय दिया है, मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ। Greetings to you all in the name of Lord and Savior Jesus Christ. हमारे मसीह यीशु जो हमारा उद्धार करता है, उसके पवित्र नाम में आप सभी को मेरा अभिवादन। Firstly, I give thanks to Almighty God for giving me this wonderful opportunity to stand before you. सबसे पहले अपने पराक्रमी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसने यह मौका दिया कि आपके समक्ष खड़े हो पाऊँ। And so I give thanks to our Joseph who has given me this wonderful opportunity to be here. और रंजोस का भी शुक्रिया करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे को यह मौका दिया। Today morning I'm going to speak that is very, very familiar message for us. और आज की सुबह मैं जिस आयत से प्रचार करने वाला हूँ, हमारे लिए बहुत ही सुपरिचित है। We often meditate, और हमेशा हम उस पर मनन करते हैं, हम उसमें से प्रचार करते हैं, we often talk about it. हम इसके बारे में बातें करते रहते हैं। The scripture portion is taken from Matthew chapter 5, verses 14 to 16. और मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय 14 आयत से 16 आयत तक शास्त्र पाठ चुना गया है। Matthew chapter 5, verse 14 to 16. मत्ती उसका 5वां अध्याय 14 आयत से लेकर तो उसकी 16 आयत तक। Let's look to the Lord in prayer. आइए हम प्रार्थना करें। Gracious God, Heavenly Father, we thank you for having us to come before you and to meditate your word, Lord. You're going to help us to understand about your word. And also, Lord, as those who are listening, Lord, may you speak to them so that they may get something about you, Lord. Let your word be a reminder to them as they walk and they go wherever they are, Lord Jesus. So I submit my life into my hand. You're going to use me to speak to me so that I may speak your word in correct way. I submit the session to my hand. In Jesus' name I pray. आमीन। Amen. I will need this to read in Hindi. मत्ती 5 उसका 14 से 16। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और जो लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर में सब लोगों पर प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है उसकी बढ़ाई करें। I want to put a question this way before I start. इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहूँगा। Do you ever influence to others? क्या आपने कभी किसी को प्रभावित किया है? Are we ever influenced to someone? क्या हमने कभी किसी को प्रभावित किया है? I believe most of you will say yes. आप में से बहुत से लोग ऐसा कहेंगे, हाँ हमने किया है। But one side, the important question to put is that are we influencing whether negative or positive? लेकिन प्रश्न को थोड़ा बदलकर हम यहाँ पर रखते हैं, क्या आप सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से किस तरह से आप प्रभावित करते हैं? Sometimes influence to do some bad things. कई बार तो हम दूसरों को बुरे काम करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं, Sometimes we influence to do good things. और कई बार लोगों को भले काम करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। Yes, here we can see this passage. और हमने इस बात को इस परिच्छेद में देखा। This passage is known to be one of teaching of Jesus Christ. और मसीह यीशु की शिक्षाओं में से एक शिक्षा के रूप में इस परिच्छेद को समझा जाता है। Verse 13. 13 आयत को जब हम देखते हैं, It's talk about salt.
ये नमक के बारे में बताता It है। says, you are the salt of the earth. यहाँ लिखा है कि आप इस जगत के नमक हो। I don't know how many of you eat food without salt. अब मुझे ये नहीं पता आप में से कितने लोग बगैर नमक के खाना खा सकते हैं, For me, I cannot survive. लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैं नहीं खा सकता। To add salt every time. और एक समय की भोजन की बात करूं, मुझे नमक की जरूरत पड़ती है। Ask who are service to us. और जो भाई सर्विंग ड्यूटी में, आप उनसे पूछ सकते हैं मैं कितना नमक खाता हूँ। For example, if we can see, if you may put salt inside the curry or rice, मान लीजिए आप सब्जी में नमक डाल देते हैं, you cannot see it unless you taste. Unless you taste. और जब तक आप उसके स्वाद को चखेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा उसमें नमक है या नहीं। But when you taste, you know the taste of it. लेकिन जिस समय आप चख लेंगे, आपको पता चल जाएगा इसका स्वाद कैसा है। In the same way, उसी प्रकार से, salt is working influence indirectly. उसी प्रकार से नमक, जिसकी तुलना यहाँ पर, प्रतीक यहाँ पर दिया गया है, We cannot see unless we taste it. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जब तक हम उसे चखते नहीं, हम जान नहीं सकते। But परंतु here in our passage this morning, आज की सुबह इस परिच्छेद में, the light we can see everybody. लेकिन जो Everybody can see this light. ज्योति है, हम सब देख सकते हैं जब हमारे सामने वो है। That's how direct influence to us. और यही है जो सीधे रूप से हम पर प्रभाव डालती है। So today morning I want to put my title as "Let Your Light Shine." इसलिए आज की सुबह में अपना शीर्षक में इस प्रकार से देना चाहूंगा कि होने पाए आपकी ज्योति चमके। I keep 3 topics or 3 sub-points. 3 अतिरिक्त उसके अंदर बिंदुएं मैंने दी है, All 3 points were begin with P. और वो तीनों बिंदुओं का जो शुरुआत है वो अंग्रेजी अक्षर पी से होता है। Number 1, पहला, the power of light. इस ज्योति की सामर्थ। The power of light. ज्योति की सामर्थ। Before I want to share about how I was influenced to someone. और इससे पहले कि मैं सामर्थ के बारे में बात करता, मुझ पर किसी का प्रभाव पड़ा। When I was in my home, जब मैं अपने घर पर था, while my parents are still alive, और जब मेरे माता पिता जिंदा थे, is almost 25. और मैं शायद 5 वर्ष का था। When I go out of my home, whatever happened to me, whether maybe some people will say something, anything that happened to me, I will report everything to my parents. और जब मैं बाहर जाता, कुछ मेरे साथ होता या कुछ घटना घटित होती, मैं सारी बातों को अपने माता पिता के ऊपर डाल देता था। No matter good or bad, I will report to my father. अच्छा या बुरा जो भी क्यों ना हो, सारी बातों की खबर अपने पिता को देता था। After my parents died, और जब मेरे माता पिता का निधन हो गया, my mother also left to their home. और मेरी She went back. और She went back. मेरे पिता का निधन हो गया और मेरी माता अपने घर वापस चली गई, And I'm like father and mother now in the home. और अब मैं अपने घर में माता और पिता के समान बन गया। I was in maybe 12 years old. और मुझे जहाँ तक याद आता है, मेरी उम्र केवल 12 वर्ष ही थी। Then all my younger brother and sisters we go to other house. और जो मैं और मेरे छोटे भाई बहन थे, हम सब मिल करके दूसरे घरों में जाते थे। Other home, other parents, they would not allow their children to come to my house. और आपको पता है, जो दूसरे घर के लोग थे, उनके माता पिता थे, उनके बच्चों को हमारे घर में आने की अनुमति नहीं देते थे। But however, when they make special, like such as chicken curry or maybe fish curry, when they make special, they will say to my younger brother and sister, "Go to your brother's calling, go to your home." They will say like that. और वो ऐसा करते, जब मेरे भाई बहन उनके घर में खेल रहे होते थे और उनके यहाँ कुछ अच्छा व्यंजन, मान लीजिए मुर्गी बनी हो या मछली बनी हो, तो वो उनको बोलते थे, मेरे भाई बहनों को, कि तुम जाओ, तुम्हारे बड़े भाई तुमको बुला रहे हैं, तुम लोग यहाँ से जाओ। Just like me, how I report to my father, they will report it to me. तो जैसा मैं सारे खबर अपने पिता को देता था, मेरे भाई बहन जो छोटे हैं आकर मुझे वो खबर देते थे। They will report everything, whatever happened to their life. सारी बातें जो उनके जीवन में हो रही है, muझे आकर खबर देते थे। Suddenly they will ask, "Why you are calling us? We are playing there." और फिर कई बार ऐसा बोलते थे, आप मुझे क्यों बुला रहे हो हम लोगों को, हम तो वहाँ खेल रहे थे, क्यों बुलाया हमें? I said, "Because they are chasing. Because of they come back to report to me." और जबकि वो भाग करके मेरे पास आए मुझे खबर देने के लिए, Alright, when it comes to, that is how I influence them. तो इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने उन पर प्रभाव डाला। When it comes to the power of light, जब हम ज्योति की सामर्थ्य की बात करते हैं light of darkness, और ये ज्योति की तुलना अंधकार से करते हैं,
The place may be darkest place which you cannot imagine. और हो सकता है कि वो अंधकार इतना गहन हो आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। Little light can control. छोटी सी ज्योति वहां पर प्रकाश ला सकती Little है। light better to drive away all darkness. एक छोटी सी ज्योति अंधकार को वहां से भगा सकती है। When we see Genesis chapter 1 verse 1 and 2, जब हम उत्पत्ति 1 उसका 1 और 2 में देखते हैं, the earth is filled with darkness. आप देख सकते हैं पूरी पृथ्वी पर अंधकार छाया हुआ था। God did not say that it was good. परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि ये भला है। When we come to verse 3, जब हम तीसरी आयत में आते हैं he said, let there be light. और फिर वहां पर परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जा, There was light. और फिर प्रकाश हो गया And he saw that it was good. और फिर उसने देखा ये तो बहुत भला है, And light is good. ज्योति अच्छी है। In 1 John chapter 1 verse 5. पहला यूहन्ना 1 का 5, 1 John chapter 1 verse 5. पहला यूहन्ना 1 का 5 God is light, he says. यहाँ लिखा है परमेश्वर ज्योति है, In God there is no darkness at all. परमेश्वर में अंधकार नहीं पाया जाता। Light is God himself. इसका मतलब ज्योति स्वयं परमेश्वर है। Light also represents purity. और आप ज्योति को यदि देखें यह प्राथमिकता या अपने आप में एक बेहतरी को दर्शाता है। Blindness and goodness. कहना चाहिए अपने आप में भलाई, अपने आप में सौम्यता। And John chapter 8 verse 12. यूहन्ना 8 का 12, John chapter 8 verse 12. यूहन्ना 8 का 12 It says, I am the light of the world. आप देख सकते हैं वहां पर लिखा है यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। Jesus said, I am the light of the world. यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। Jesus came to, as we see before the sun. Jesus came to the darkness place and he shined upon the people. और जैसे Darkness place. हम गीतों को गाते हैं, हमने गाया कि मसीह यीशु इस अंधकार नुमी इस धरती पर वो आए और यहाँ पर ज्योति के रूप में अपने आप को प्रज्वलित कर दिया। And the same way Jesus told us here, you are the light of the world. उसी प्रकार से यीशु ने हमसे यहाँ कहा कि आप जगत की ज्योति हैं। Today we are the light of the world. आज हम जगत की ज्योति हैं। Amen. आमीन। We are the light of the world. हम जगत की ज्योति हैं। Then what we should do? तो अब हमें क्या करना है? It is Isaiah chapter 60 verse 1 following. यशायाह नबी की पुस्तक उसका Isaiah chapter 60 60वां अध्याय 1 following. 1 से आगे हम पढ़ेंगे। It says, arise and shine. वहां पर लिखा है उठ Arise and shine. खड़ा हो तेरा प्रकाश आया The है। earth is covered full of darkness. आप देख सकते हैं धरती अंधकार से भरी हुई है, We are to shine. लेकिन हमें प्रकाशमान होना है Let us shine a light. और हमें उठकर प्रकाशमान होना है। And also light, we see as light conquer darkness. As we see, light also protects. हम देखते हैं जिस प्रकार से ज्योति अंधकार को वहां से हटा देती है, दूसरी बात हम देखते हैं जो ज्योति है वो हमें सुरक्षा देती है। When I came to India, और जब मैं भारत में आया, traveling from my place, अपने स्थान से यात्रा करके भारत में आया, I had to travel on foot 7 days. 7 days 7 days. और 7 दिन तक मुझे पैरों पर चलना पड़ता है। I have to go 7 days. But someday I will sleep मुझे- on the river. अपने स्थान से यदि यहाँ आना है 7 दिन तक मुझे पैदल चलना, कई बार मुझे नदी के किनारे सोना पड़ता है, Sometimes I have to sleep on the mountain, top of the mountain. कई बार तो मुझे पहाड़ की चोटी में सोना पड़ता है, Sometimes I will sleep in the home village. कई बार तो गांव में लोगों के घरों में मुझे सोना पड़ता I है, will travel at night sometimes. और कई बार तो हमें रात में भी यात्राएं करनी पड़ती है। We have to use those lights. हमें उस समय फिर टॉर्च लाइट का इस्तेमाल करना पड़ता We है, have to see. क्योंकि आप देखना चाहते हैं, We have to use it. हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। I will not be able to see. यदि मैं इस टॉर्च का इस्तेमाल ना करूं मैं देख नहीं पाऊंगा I'm going to get injured. और मुझे चोट पहुंच जाएगी Stumbling and maybe fall. और मैं लड़खड़ा कर हो सकता है टकरा कर गिर जाऊं। Light protects us. ज्योति हमारी सुरक्षा From करती है, dangers of darkness. अंधकार के खतरों से हमें बचाती है, Stumbling. लड़खड़ ठोकर खाने से बचाती है, From falling apart. गिरने से बचाती है, From injuring. चोट हमें लगने से बचाती है। John chapter 5 verse 5 says, यूहन्ना 5 के 5 में लिखा है, While I in the world, while I in the world, और जब मैं दुनिया में था I am the light of the world. और मैं जगत की ज्योति हूँ। Jesus is no longer. अब यीशु नहीं है, Yes, he told us, oh, you are the light of the world. तो फिर उसने हमसे कहा कि तुम जगत की ज्योति We हो। are the light of the world. हम जगत की ज्योति हैं To shine on others. कि दूसरों पर हम प्रकाशमान हो जाएं। Let us consider ourselves. आइए हम इस बात पर थोड़ा विमर्श करें That we are the light of the world. कि हम जगत की ज्योति हैं।
Second point, दूसरा बिंदु, the product of light. इस ज्योति का फल। As we see the power of light, जैसे हम ज्योति की सामर्थ्य को देखते हैं, I want to deal with the product of light. अब हम देखेंगे उस ज्योति का फल या उसका उत्पादन क्या है। What does light do? अब ये ज्योति क्या करती है। We can see Ephesians chapter 5 verse 9. इफिसियों की पत्री 5:9 को हम देख सकते हैं। Ephesians chapter 5 verse 9. इफिसियों की पत्री 5:9 को हम देख सकते हैं। What we have to shine here? हमें किस फल के लिए हमें चमकना है। You will see the fruit of light is goodness, righteousness and truth. आप देख सकते हैं वहां लिखा है जो ज्योति का फल है वह भलाई, धार्मिकता, सत्य है। Number one, पहली बात, the products of light is goodness. सबसे पहली बात जो ज्योति का फल है वह भलाई है। This word refers to uprightness of our heart. इसका मतलब हमारे दिल के सिधाई से है। It speaks about godliness यह ईश्वर भक्ति के बारे में बताता है। in our motive, हमारे मंशाओं में, action, हमारे कर्मों में, in our speech, हमारे बातों में, in our thought. हमारे विचारों में। It is a quality of godlikeness. और यह परमेश्वर के समान बनने का गुण है। It is also referred to how we treat each other, इसका सीधा संबंध उससे है कि हमारा बर्ताव दूसरों के साथ कैसा होता how we है। treat men to one another, हम एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते how we हैं, spoke to each other. कैसे हम एक दूसरे से बातें करते हैं। When we look at the life of Jesus Christ, जब हम प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी को as he देखते said, हैं, like he is the light of the world. जैसे उसने कहा कि वो जगत की ज्योति है, He never stopped doing good to anyone. उसने कभी भी दूसरों के साथ भलाई करना बंद नहीं किया। He's doing good to everyone. वो हर एक के साथ भलाई करता आ रहा है। And the second of products of light is also righteousness. और अगर हम ज्योति के फलों के बारे में देखें, भलाई के और परमेश्वर की भलाई के साथ साथ हम देख सकते हैं उसमें धार्मिकता भी है। While we are still sinners, जब हम पापी ही थे, Jesus Christ took away all our sins. यीशु ने हमारे गुनाहों को ले लिया। And he declared we are the light of the world. उसने घोषित किया कि हम जगत की ज्योति हैं। He declared you are the light of the world. जबकि उसने यह घोषित किया कि तुम जगत की ज्योति हो, हम धर्मी बन गए। Today we are the light of the world. आज हम जगत की ज्योति हैं। We are to live a righteous life. And we हमें एक धर्मी का जीवन जीना है। as he declared you are righteous. जैसे उसने घोषित किया कि हम धर्मी हैं। And the third one we can see, तीसरी बात हम देख सकते हैं, the products of light is truth. और इस ज्योति का जो उत्पादन है एक और तीसरा वह सत्य है। Truthfulness. सत्यता। This word refers to honesty, reliability and trustworthiness. आप यदि इस सत्य शब्द को देखेंगे, इसमें से यदि इसका अर्थ को निकालें, इसका मतलब निर्भरता, ईमानदारी और किसी बात पर आश्रित हो पाना। That can be seen in our life. इसका मतलब ये सारी बातें हमारी जिंदगी में दिखाई देनी चाहिए। Not to live in deceptive way और धोखाधड़ी करते हुए जिंदगी ना जिए, or false way of the world. या फिर संसार की जो झूठी रीति है उसके अनुसार ना चले, But we have to live in truth. लेकिन हमें सत्य में जीना है। In our speech, अपने शब्दों में सत्य बनना है। let's consider ourselves. आइए अपने आप का अवलोकन As we are करें। light of the world, जैसे हम जगत की ज्योति हैं, we should produce goodness in our life. हमें अपने जिंदगी में भलाई को उत्पन्न करना है। Let's produce righteousness in our life. धार्मिकता अपनी जिंदगी में उत्पन्न करना है। Let's produce living truthfulness in our life. आइए अपनी जिंदगी में सत्यता को हम उत्पन्न करें। Number third point, मेरा तीसरा बिंदु, the place to shine. अब वो स्थान कौन सा है जहां जाकर आप चमके। As we look at the power of life, जैसे हमने इस ज्योति की सामर्थ्य को देखा and we also look at the products of life or fruit of life, और ज्योति के फल को भी हमने देखा, उसके उत्पादन को हमने देखा। then what we have to do with अब इन दोनों के साथ क्या करना है, कहां जाना है, to shine. कहां जाकर चमकना है। The place to shine. अब उस चमकने, प्रकाशमान होने का स्थान। In this particular verse, Jesus speaks about the lampstand. आप यदि इस आयत को पढ़ेंगे, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने दीवटों के बारे में बातें की है। Jesus spoke about lampstand. प्रभु यीशु मसीह ने दीवटों के बारे में बातें की है। Also, one side also candle. और दूसरी तरफ हम बोले तो मोमबत्ती भी हो सकती है। We use candle today. आज भी हम मोमबत्ती का इस्तेमाल करते हैं। Today, many places in village there is no electricity. अब बहुत We use candle. अब बहुत से गांव में जाए, वहां बिजली नहीं है, वो मोमबत्ती और दिया जलाते हैं।
And the same way, the lamp in the ancient days, इसी प्रकार से प्राचीन युग में this lampstand uses on the clay. They will put olive oil. और आप देखेंगे मिट्टी का एक पात्र हुआ करता था जिसमें वो जैतून के तेल को डालते थे, And especially for home. और वो विशेष तौर पर घरेलू इस्तेमाल के लिए, घर के इस्तेमाल के We लिए। need to say that we have to shine in our home. तो हमें ये कहना चाहिए कि हमें पहले अपने घर में चमकना है, It teaches that you have to shine in your dormitory. और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको अपने शयन कक्ष में चमकना है, It teaches you have to shine in your roommate. और यदि आप किसी अपने रूम में, कमरे में अपने दोस्त के साथ पाए जाते हैं, आपको अपने कमरे में चमकना है, To your brothers and to your sisters. अपने भाई अपने बहनों के सामने चमकना है, Now shine. आपको प्रज्वलित होना है। What we have to shine? हमें कहाँ चमकना है? As we discussed already. पहले ही हमने बात कर ली, Goodness, भलाई, righteousness, धार्मिकता, truthfulness. सत्यता। We have to shine on those things. हमें इन सारी बातों को अपने जीवन से प्रकाशित करना है। And where to shine again? हमें कहाँ चमकना है? And Jesus also spoke about यीशु ने इसके बारे में बोला, the cities. The cities. शहरों में, नगरों में, To shine in the cities. नगरों में चमकना है, Yes, shine not only in the house, ना केवल घर में, but to shine in the cities. लेकिन नगरों में चमकना है। And also not only in the house, and not only in the cities. ना केवल घरों में और नगरों में। Jesus told us that you are the light of the world. तुम जगत की ज्योति हो। We have to shine the whole world. हमें पूरे दुनिया भर में चमकना We है, have to shine the whole world. पूरे दुनिया भर में चमकना है। My dear brothers and sisters, मैं अपने भाइयों और बहनों, let us shine our light. आइए हम अपनी ज्योति को चमकाएं, अपनी ज्योति को चमकाएं। Your forefathers may not be Christian, आपके पैतृक जो थे, हो सकता है वो इन बातों को ना समझ पाए हो, but your fathers are Christian. Your लेकिन parents are Christian. लेकिन आपके माता पिता मसीही हैं। It is because somebody shine upon your family life. यही है कि कोई ना कोई आकर आपके परिवार में अपने रोशनी को दिखाया। Your parents may not be Christian, हो सकता है आपके माता पिता मसीही ना हो, but you become Christian. लेकिन आप मसीही बन गए, Because somebody influenced you. लेकिन क्योंकि किसी ने आप पर प्रभाव डाला, Because somebody shine upon you in your life. किसी ने अपनी ज्योति आप पर चमकाई। They are duty to shine to others. आज हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों पर अपनी ज्योति Let us चमकाएं। live in this life. आइए हम उस ज्योति को लेकर Let जाएं। us not stop being good to one another. आइए एक दूसरे के साथ भलाई करना खत्म ना करें, Let us stop living truthfulness in our life. और अपने जीवन में सत्यता को जीना बंद ना करें। I will tell you a story, one story. एक कहानी आपको And I बताएं, will conclude this message. और फिर उसके बाद अपने संदेश को विराम करना चाहिए। एक व्यक्ति था There's one woman. और एक स्त्री थी, She was preparing everyday food. और वो स्त्री भोजन बना रही थी। Maybe making chapati. हो सकता है वो रोटी बना रही हो, Was making chapati every day. प्रतिदिन रोटी बनाती थी, Whenever she makes, she will make extra. और जब कभी वो रोटी बनाती, अतिरिक्त रोटियों को बनाती, And it's for poor people. और वो गरीबों के लिए होता। But there was one old man. लेकिन वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति था, He will come every day to his house. वो रोज इस स्त्री के घर में आता, Because the old man know that there is everything with him. क्योंकि उस बुजुर्ग व्यक्ति को मालूम है इस स्त्री के पास उसे खाने को रोटी जरूर मिल जाएगी। However, the old man did not say anything. The old man did not say anything to his woman. अब ये बुजुर्ग स्त्री ने उसको कुछ नहीं बोला। The old man said, उस two words. उस बुजुर्ग व्यक्ति ने केवल 2 शब्द कहे, The evil you do, remain with you. The good you do, will come back to you. यदि तुम भलाई करोगे, भलाई तुम्हारे पास वापस आ जाएगी, The evil you do, remain with you. और यदि तुम बुराई करोगे, बुराई तुम्हारे पास आ The जाएगी। evil you do, will come back to you. यदि तुम भलाई करते हो दूसरों के लिए, वो भलाई तुम्हारे पास आएगी। This woman was saying that he was offended. He must be offended. हो सकता है आप सोचे कि वह व्यक्ति पागल हो, Then one day this woman decided to make differently. और फिर इस स्त्री ने सोचा, अरे ये व्यक्ति पागल है। बहुत दिन बीत गए, उसके बाद इस स्त्री ने सोचा, एक अलग तरीके से मैं आज रोटी बनाती हूँ। So she made put in chili, lot of chili, lot of salt, lot of soda, and give it to him so he will die. तो उस स्त्री ने सोचा, आज मैं अलग तरीके से बनाऊंगी, इस बूढ़े को मजा चखाऊंगी। उसने रोटी के अंदर में मिर्ची, नमक, सोडा, पता नहीं क्या क्या भर के रोटी बना दी। और जब ये बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया, He was little bit, he
और अब उस स्त्री के दिल में कुछ तो हो रहा था। उसने स्त्री ने सोचा कि मैं इसको ये रोटी नहीं देगी। Then he made new one. तब उसने नया रोटी बनाया Good roti came. और फिर अच्छी रोटी उसने उसको दे दी। Then he left. वो बुजुर्ग व्यक्ति चला गया। His son, woman's son, इस स्त्री का बेटा he came from business. वो अपने व्यवसाय से वापस आया On the way, he met this old man. और फिर रास्ते में उसने इस बुजुर्ग व्यक्ति से मुलाकात He की। was almost dying there. अब वो मरने पर ही था। He old man asked उस व्यक्ति ने पूछा, to this young man, इस बुजुर्ग व्यक्ति ने इस स्त्री के बेटे से पूछा, what happened to you? तुम्हें क्या हुआ? What happened to you? तुम्हें क्या हुआ? He said, I'm not eating almost 3-4 days. उसने कहा, मैं 3-4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, मैं बहुत भूखा हूँ। Then the old man replied, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, I have only one roti. मेरे पास केवल एक रोटी I है, have only one roti. मेरे पास केवल एक रोटी है, I can give you. मैं तुम्हें दे सकता हूँ And with this, you can go to your home. और उस रोटी को खाकर तुम अपने घर जा सकते And he gave this one roti which his mother gave. हो। और जो एक रोटी उसकी माँ ने दिया, वो उस रोटी को जो बूढ़े के पास थी उसने उस लड़की को दे दिया। The young man returned to his home अब वो जवां लड़का अपने घर वापस आता है, and gave explained everything to his mother. सारी बातें अपनी माँ को उसने समझाया। And the woman realized what the word that he spoke to this woman. और फिर उस स्त्री ने इस बात को एहसास किया कि उस बुजुर्ग ने उससे क्या कहा था। The woman never stopped doing good. Hallelujah. अब उस स्त्री ने भलाई किया जिसके वसीले से उसके पास भलाई आई। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let's not stop doing good. तो आइए हम भलाई करना बंद ना करें, Let's live righteous life. आइए हम एक धर्ममय जीवन So जिए that God's name is glorified. कि हम परमेश्वर का नाम महिमावंत होने पाए। Amen. आमीन। Thank you. धन्यवाद। I want to sing a song. I also like to sing a song. The song, if you know, you can join with me so that एक गीत मैं गाना चाहूंगा, यदि आपको मालूम है आप मेरे साथ उस Everybody know the name is Little Light Heart. तो एक ये सबको मालूम है ये गीत, जिसको आता है मेरे साथ आप भी गा पाएंगे।